ایچ کے تمام طلباء و طلبات کو میرا سلام۔ بچوں، ہسٹری انگلش اردو ٹوٹوریل میں آپ کا سواگت ہے۔ میرا چینل میں خوش آمدید ہے، موسٹ ویلکم ہے۔ آج میں ویسٹ بنگال کونسل آف ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کلاس 12 2016 میں جو پیپر آیا ہوا تھا اردو سبجیکٹ پارٹ بی میں، ان تمام سوالاتوں کو دیکھیں گے۔ ہر سال ایچ ایس کے ایگزام میں، ہائر سیکنڈری ایگزام میں پریویس ایئرس کا سوال کامن آتے رہتا ہے، اسی لیے پریویس ایئرس کا سوالات حل کر کے پڑھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کا رزلٹ بیسٹ ہو سکے، اسکور اچھا مارکس آ سکے، پرسنٹیج بھی آپ کا اچھا ہوگا۔ تو پارٹ بی میں اردو سبجیکٹ اس کو دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالاتوں میں کسی 5 سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال، زندگی اور وجد کے جس گوشے کو دیکھیے، قدرت کی کرشمہ سازیوں کے ایسے ہی تماشے نظر آئیں گے۔ یہ کوٹیشن ہے۔ یہ کوٹیشن مذکورہ جملہ کس مضمون سے ماخوذ ہے اور مصنف کا نام کیا ہے، بتائیں۔ تو جواب ہوگا اس کا، مذکورہ جملہ مضمون غبارِ خاطر سے ماخوذ ہے اور اس کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ دو نمبر سوال، مولانا محمد علی جوہر کے علاوہ رشید احمد صدیقی کے کسی دوسرے مضمون کا عنوان بتائیں۔ تو جواب ہوگا، مولانا محمد علی جوہر کے علاوہ رشید احمد صدیقی کے دوسرے مضمون کا نام جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر ذاکر حسین ہیں۔ 3 نمبر سوال، مولانا ابوالکلام آزاد نے مکتوب نگاری کے علاوہ اردو نثر کی اور کس صنف نے نمایاں مقام حاصل کیا؟ تو جواب ہوگا اس کا، مولانا ابوالکلام آزاد نے مکتوب نگاری کے علاوہ اردو نثر کی صنف صحافت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ 4 نمبر سوال، پھول والوں کی شعر کا میلہ کس کی باہمی محبت کا نتیجہ ہے؟ تو جواب ہوگا، پھول والوں کی شعر کا میلہ ہندو مسلم باہمی محبت کا نتیجہ ہے۔ 5 نمبر سوال، اگر تمام دنیا کی مصیبتیں اگر ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دے اور پھر سب کو بانٹ دے تو جو لوگ اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے ہیں، یہاں اس کی تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ تو یہ کوٹیشن ہے۔ یہ کوٹیشن کس کا قول ہے یا کس مضمون میں موجود ہے؟ جواب ہوگا، مذکورہ قول محمد حسین آزاد کا ہے اور یہ مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے میں موجود ہے۔ اگلا سوال، چار نمبر، فرحت اللہ بیگ کی تاریخ اور جائے پیدائش لکھیں۔ جواب، فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1883 میں 83 عیسوی میں دلی میں ہوئی تھی۔ 7 نمبر سوال، رشید احمد صدیقی اردو نثر کی کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، بتائیں۔ رشید احمد صدیقی اردو نثر کے صنف خاکہ نگاری سے تعلق رکھتے ہیں۔ درج ذیل سوالاتوں میں سے ہر ایک کی صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ پہلا نمبر سوال، یہاں احاطہ کے شمالی گوشہ میں ایک ڈیش کا درخت ہے، املی، امرود، نیم اور آم۔ تو صحیح جواب ہے جی، نیم کا درخت ہے۔ اگلا سوال، ولادت تو مادر ذات ہوتی ہے لیکن ڈیش کی موت خانہ زاد تھی، احمد علی، محمود علی، محمد علی، علی احمد۔ تو صحیح جواب ہے محمد علی۔
3 नंबर सवाल, बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया। दिल्ली वालों से कहा अगर हर साल भादों के शुरू में ये मेला हुआ करे तो कैसा। तो पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब है, ये कोटेशन फ़खरुल्लाह बेग के फूल वालों शेर से लिया गया है। अगला सवाल, मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किस किताब में शामिल है। दरबारी अकबरी, दरबार अकबरी, आब हयात, निरंग ख्याल, आईना अकबरी। तो सही जवाब है आईना अकबरी। आपके निसाब में शामिल रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून किस ज़न्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है। अफसाना, सफ़रनामा, शवाना, खाका। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल। दर्जल सवालों में किसी 5 के जवाब लिखे, हर जवाब कम अज़ कम एक जुमले में मुकम्मल हो। ऐसा के है गो सिलाह, गर सिलाह की ख्वाहिश तुमको, ये रुबाई में से है। रुबाई का पहला मिसरा है। ये मज़कूरा किस शायरी ज़न से लिया गया है, इसके शायर का नाम बताइए। ये रुबाई से लिया गया है। ये रुबाई जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम है। अगला सवाल, तू अगर अपनी हकीकत से खबरदार रहे, ना सहे रोज रहे फिर ना शहकार रहे। मज़कूरा शेर किस नज़म से माखूज़ है। नज़म का उन्वान और शायर का नाम बताएं। मज़कूरा शेर नज़म इंसान और बज़्म कुदरत है और शायर का नाम अल्लामा इकबाल है, जो 1877 ईस्वी में सियालकोट पंजाब ईस्वी में पैदा हुए थे। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की किस नज़म उन्वान लिखे, किसी नज़म का उन्वान लिखे। तस्वीर दर्द। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की मौत और की तारीख बताएं। पैदाइश और मौत की तारीख 9 नवंबर 1877 सियालकोट पंजाब में पैदा हुए थे और वफ़ात 21 अप्रैल 1938 ईस्वी लाहौर में इंतकाल कर गए। अगला सवाल, जोश मिले आबादी के किसी एक मजमूई कलाम का नाम बताइए। इनका जवाब होगा 16 शबनम, जोश मिले आबादी की एक मजमूई कलाम का नाम है। अगला सवाल 6 नंबर, मस्ती में फरागे रुख जाना नहीं देखा, शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम बताइए। तो मस्ती में फरागे रुख जाना नहीं देखा, सुनते हैं बाहर आई गुलस्ता नहीं देखा। शायर का नाम असगर गोंडवी साहब है। अगला सवाल 7 नंबर, निसाब में शामिल फैज़ अहमद फैज़ की नज़म का उन्वान लिखे। तो फैज़ अहमद फैज़ का नज़म के उन्वान का नाम दर्द आएगा दबे पाँव है। 4 नंबर सवाल जो है, सवालों में से हर एक के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था। ऑप्शन है जदीदियत की तहरीक, आयाम गोई की तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, रूमानी तहरीक। तो सही जवाब है जीम। अगला सवाल 2 नंबर, फाख्ता की आवाज़ के शायर का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, जोश मिले आबादी, मजरू सुल्तानपुरी। तो सही जवाब है जिम नंबर जोश मिले आबादी। नेक्स्ट, शेख इब्राहिम जौक ने आपके निशाब में शामिल कसीदा किसकी मदह में लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। नक्शे फरियादी की शायर का शायरी मजमुआ है। जोश, फैज़, मजरू, अल्लामा इकबाल। तो सही जवाब है फैज़ अहमद फैज़ का नक्शे फरियादी है। अगला सवाल, मस्ती में फराग रुख जाना नहीं देखा, सुनते हैं बाहर आए गुस्ता नहीं देखा। ये किसका शेर है।
तो मजरू सुल्तानपुरी, परवेज शाहिदी, फैज अहमद फैज, असगर गोंडवी। तो इसका सही जवाब है असगर गोंडवी। अगला सवाल, मुकालमा ड्रामा का एक अहम जजू है, इसकी तारीफ एक जुमले में कीजिए। मुकालमा की मदद से ड्रामा आगे बढ़ता है। दो नंबर सवाल, मैं तो बस आंखें बंद करके इन रास्तों और मरहलों को देखना चाहता था जो मैंने पीछे डैश साल में इसके साथ गुजारे थे। तो कितने सालों में? 40 साल, 35 साल, 50 साल, 20 साल। तो सही जवाब है 35 सालों में। अगला सवाल, बीच का वरक किस अफसाना निगार का मजमुआ है? बीच का वरक, तो सही जवाब है इसका जफ़र औगानवी साहब का अफसाना का मजमुआ है। 4 नंबर, बदू का किरदार अफसाना में मौजूद है। बेवजनी, तेजाब, आपा, नया कानून। तो सही जवाब है आपा। दर्जेल में से किसी एक का जवाब दीजिए जो एक जुमले में हो। तरक्की पसंद तहरीक के किसी 2 अदबा शोरा के नाम बताएं। तरक्की पसंद तहरीक के 2 शोरा के नाम फैज अहमद फैज और परवेज शाहिदी है। अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला अपनी इस्लाही तहरीक के दौरान जारी किया था? तो सही जवाब है तहज़ीबुल इखलाक। तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा डैश की सदारत में हुआ था? यानी सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा में किसकी सदारत में हुआ था? तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट सवाल जो है 3 नंबर, डैश सर सैयद अहमद खान के रफ़क़ा में शामिल थे? मौलाना हाली साहब। इनका जवाब है सज्जाद जहीर खां एक डैश अदीब थे, एक तरक्की पसंद तहरीक के अदीब थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो। 2 नंबर सवाल, आपके निसाब में शामिल ड्रामा निगार के किसी एक हम असर ड्रामा निगार का नाम बताइए। तो सही जवाब है जहीर अनवर साहब है। अगला सवाल 3 नंबर, उर्दू के किसी 2 इब्तदाई ड्रामा निगारों के नाम बताइए। तालिब बनारसी और आगा हसर काश्मीरी। निसाब में शामिल ड्रामे के 4 किरदार का नाम बताएं। एक था राजा के 4 किरदार में राजा, हातिम ताई, सिंदबाद और वजीर। 6 नंबर सवाल, दर्जेल में से हर सवाल का सही जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर सवाल जो है डैश डैश ड्रामा का एक अहम जुज है। तो सही जवाब है इसका बे, किरदार। 2 नंबर सवाल, राजा का जन्मदिन डैश तारीख को हुआ था? तो इसका सही जवाब है 15 तारीख को हुआ था। 3 नंबर सवाल, राजा ने डैश ब्याह किए? 4, 17, 20, 10। तो सही जवाब है 17। नेक्स्ट, डॉक्टर जफ़र औगानवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? बेवजनी। बेवजनी जफ़र औगानवी का है। नेक्स्ट, आपा किसकी तसनीफ़ है? अफसाना निगार का पूरा नाम। आपा जो है मुमताज़ मुफ्ती साहब का लिखा हुआ है। इनका पूरा नाम मुफ्ती मुमताज़ हुसैन है। 8 नंबर सवाल, दर्जल सवालों में से हर एक के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर कोटेशन जो है, लेकिन आखिरी सफ़र पर पहले कौन निकल खड़ा होगा, ये किसको पता है? मज़कूरा जुमला अफसाना माखूज़ कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब है बेवजनी में।